अफसर अगे हाथ जोड़ के माफी मांगने लिहाजा सानू माफी दी जाए। शूटर्स मार रहे थे ना, अब शूटर्स भेजने वालों की बारी आ गई है। ये तो अच्छी चीज है, ये तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल पौधा बहुत कुड़ी हवा पता है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਨਮੈਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਗਏ ਆ। ये यकीनी तौर पर हिरासत में अच्छा जी, ये यकीनी तौर पर अफराद जो है हिरासत में, जिस जगह पर ये बैठे हुए हैं, जिन चेयर्स पे जहाँ पे बयान दे रहे हैं, ये यकीनी तौर पर हिरासत में है, क्योंकि इन्होंने अपने वेपन्स और असला जो बोधे ने इनको दिया हुआ था अपनी गनमैनी के लिए, ये वो लेकर पेश हुए। क्या मलक बोधे को एनकाउंटर में पार करने की तैयारियां चल रही हैं, या ये बहुत बड़ी बात है। जब इंसान की जान पे बनी होती है ना, तो वो अपने बहन भाइयों को भी खा जाता है। खुद कह रहे हैं वीडियो बयान में कि हमने अपने गन्स और ये सारी चीजों समेत पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। मैंने तो यहाँ तक रिक्वेस्ट की थी कि फायर मारने के बजाय ना उसका जो अजू है ना उसको काट के कुत्ते बिल्ली को खिला दें। अगर मेरिट पे मारा है ओके फाइन, अगर किसी ने अपना खारबाजी में मार दिया या ताल्लुक में मरवा दिया है तो यहाँ पर सीसीडी के मामला जो है वो खराब होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कल ना हर तरफ सीसीडी का दौर है। लोग कुरान पाक उठा के वीडियो बना रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, इमाम मस्जिद साहिब की गारंटियां दिलवा रहे हैं कि जनाब हम नेक हो गए हैं, जनाब हम हाजी बन गए हैं। एक वीडियो है, वो मेरे भाई हैं, सके छोटे भाइयों की तरह, रसलान तैमूरी साहब, और ये इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं कि मैं इनकी शायद ही कोई वीडियो मेरे से मिस होती हो। मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ और जब मुझे आता है तो मैं उसी वक्त कहता हूँ कि पहले ये वीडियो देखूँ, क्योंकि वो करंट वीडियो होती है उसमें। बल्कि ये तो जैसे एक स्ट्रीम मीडिया पे होता है ना, ब्रेकिंग करते हैं, उसके बाद फिर पूरा लाहौर उसे पकड़ के वीडियो को चलाता है। तो आज इनके पास मैंने एक वीडियो देखी है, ये अपने एनालिस्ट साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जरा थोड़ी सी चलाएं। अली हसन मेरा नाम है, शेखपुरा का मैं रहशी हाँ। काशफ अली एदा नाम है, आ शेखपुरा का रहशी है। आ मकबूल मसीह जे, ए डेरा गुजरा लाहौर दा रहशी जे। मलक बोधा बहुत कुड़ी हवा पता है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਨਮੈਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਹਵਾ, ਲਾਂਤੀ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਗੰਨਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹਵਾ ਆਪ ਤੇ ਨੱਥ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਲਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਲਕ ਬੋਧੇ ਕੁੜੀ ਹਵੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਅਲੀ ਹਸਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੇ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜੇ। ਆ ਕਾਸ਼ਫ ਅਲੀ ਜੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜੇ। ਆ ਮਕਬੂਲ ਮਸੀਹ ਜੇ, ਡੇਰਾ ਗੁਜਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਬੋਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮਲਕ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫ ਬੋਧਾ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲਾ ਸਮੇਤ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਲਕ ਬੋਧਾ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। अरसलान साहब, ये कौन लोग हैं? ये क्यों कलस्मे खा रहे हैं, क्यों सपारे उठा रहे हैं, बंदूकें भी इन्होंने पकड़ी हुई हैं? ये क्या चक्कर है, ये क्या स्टोरी है, मुझे समझ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया फुरकान भाई आपका प्रोग्राम में दावत देने का और इस इशू पे गुफ्तगू करने का। असल में फुरकान भाई आपको पता है कि सीसीडी जो है ये आजकल, पहले लोग इन पे तनकीद कर रहे थे कि छोटे छोटों को लोगों को उठा के मार रही है
और कोई बड़ा आदमी नहीं मारा गया। अब सीसीडी ने जो है ना, वो जो बारी लग गई है ना, थोड़े से जो नीचे वाला निचला तबका था उससे थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब वो लोग सामने आ गए हैं कि जो शूटर भेजते हैं, मतलब पहले तो शूटर्स मार रहे थे ना, अब शूटर्स भेजने वालों की बारी आ गई है। ये तो अच्छी चीज है, जी, ये तो अब होनी वो- ही चाहिए। जी, बिल्कुल। अब सिलसिला ये है कि आपको जैसे पता है कि फैसलाबाद के अंदर एक इमरान वैंस उठा लिया इन्होंने, जो एयरपोर्ट से, जी एयरपोर्ट से उठा लिया, उसको लाहौर एयरपोर्ट से जराए बता रहे हैं कि लेकर फैसलाबाद गए हैं। वो लाहौर से फरार होने की कोशिश कर रहा था या बाहर से आया था, वो एक अलग स्टोरी है उसकी। लेकिन उसका एक शूटर था जाहिद वैनस, उसको सीसीडी ने कुछ अर्सा पहले मुकाबले में पार कर दिया वो था। दाढ़ी सी वाला जो बड़ा उसकी भी मैंने डेंजरस खबर था। ब्रेक की थी उस वक्त कि जाहिद वैनस को मार दिया, और वो इमरान वैनस का साथी था। अब इमरान वैनस और जाहिद वैनस कैसे काबू में आए? एक प्रोड्यूसर पे उन्होंने गुजरावाला फायरिंग करवाई, इमरान वैनस ने। उस प्रोड्यूसर ने जो है वो अपने फिर वीडियो ये जो स्टेज ड्रामों का प्रोड्यूसर, स्टेज ड्रामों का प्रोड्यूसर था, वो किसी लड़की का चक्कर था, वो लड़कियां भी साथ में थी उसके, जो स्टेज आर्टिस्ट होती हैं, उन पर फायरिंग की गई, लड़कियां बाल बाल बच गईं और प्रोड्यूसर साहब ने आपकी इनको फायर खता लग गई। कलामी माफ है कि पहले ये जो अदाकाराएं थी ना, जी जी, ये बदमाशों से तल्लक बनाती थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब सिनेरियो चेंज हो गया, बिल्कुल अब ऐसे ये ही। वर्दी वालों से तल्लक बनाती है। उन्हें बिल्कुल। पता है कि वर्दी वाले असल तगड़े हैं, बदमाश को तो किसी हमें टाइम भी सिक्योर सिक्योर करेंगे। इनकी मजबूरी है बेचारियों की, किसी ना किसी से जी। तल्लुक अब बिल्कुल इसे बनाना अब ये पड़ता जो है। वीडियो आई है ना, ये वीडियो है मलक बोदा, जो मलक शाहिद अमान बोदा है, उसके साथ कुछ गन मैन्स चलते थे। अच्छा, आज ये इन लोगों ने, लड़कों ने आज जो काम पिछले किया है। दिनों एक बड़ा शोर था, कत्ल जी। हो गया कोई, ये अब बड़े हुआ क्या कि मलक बोदा, चूंकि वो आपको पता है उसकी अपने भांजे मलक मुर्तजा अवान के साथ ही दुश्मनी पड़ गई, और उस मामले के अंदर मुर्तजा की जो है वो बीवी भी मर्डर हो गई थी, साथ एक जो ड्राइवर हाँ, था वो जो वो भी प्राडो, मर्डर हो गया था जी, हाँ, प्राडो पे गाड़ी पे। वो वाकया का मुकदमा मलक बोदे के ऊपर दर्ज हो गया। ठीक हो गया। अब मुर्तजा और मलक बोदा, आप पुराने शहर के जानने वाले हैं सारी बातों को, ये पहले इकट्ठे ही थे, और इनकी जो दुश्मनी थी वो करामत वगैरह के साथ थी। उनके इन्होंने बंदे बंदे मारे हुए थे, उन्होंने इनके भाई मारे हुए थे, तो एक लंबी दुश्मनी थी। अब मुर्तजा ने जो है वो उनके साथ कर ली सुलह, उस पार्टी के साथ, और ठीक हो मुर्तजा गया। हो गया अलहदा इस मामले में। अब मुर्तजा की और बोदे की चल पड़ी इस बात पे। हालांकि इन मर्डर्स के बाद मलक बोदे ने मेरे चैनल पर एक वीडियो भी डाली थी कि जनाब मेरा जो है ना इस सारे मर्डर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो बच्ची हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हाँ, मैंने मुर्तजा, देखा हाँ जी, वो उसने अपना वीडियो बयान भी एक दिया था, वीडियो बयान जारी भी किया था, बिल्कुल ओपन जारी किया था। उसके बाद 3-4 महीने 5 महीने मलक बोदा जो है ये इश्तिहारी रहा है, आपको पता है, भागा रहा है। उसके बाद अफसरान के साथ मिल मिला के या जो भी सियासी लोग थे उन्होंने इसको पेश करवा दिया। नहीं, वो तो रियासत मजबूर करती है तो जी, पेश होते हैं, अगर बिल्कुल। रियासत मजबूर ना करे तो जी, कौन पेश होता है? अब वो मुख्तसरन ये कि वो पेश हो गया, अब वो चला गया जेल में। अब 4 महीने से वो जेल के अंदर है। अब ऐसे मौके के ऊपर इन 3 अफराद के ये जो बयान सामने आया है, एक तो जो वीडियो आपके जो एनअली साहब जो चलाई है, इस वीडियो के अंदर तो बड़े डिसेंट अंदाज से बता रहे हैं कि हमने जो है वो बोदे के साथ काम किया, बोदा अच्छा आदमी नहीं है, हमें जान छोड़ी जाए, सीसीडी हमारी जान छोड़ दे, क्योंकि जाहिर है ये बोदे के अगर गनमैन होंगे तो फुरकान भाई कुछ ना कुछ तो इन्होंने बोदे की खातिर किया ही होगा ना, और जिसलिए अपनी जान बचाने के लिए बयान दे रहे हैं कि जी हमसे जो करवाया बोदे ने करवाया। अंडरस्टूड सी बात है ये उन लोगों की। एक और वीडियो है फुरकान भाई, मेरे आसान उर्दू में, यानी कि ये वादा माफ गवाह बनने की वादा माफ कोशिश गवाह बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच जाएं और सारा जो है वो बोदे के ऊपर पड़ जाए। दूसरी एक और वीडियो भी है इनकी। अब आप ये इनकी जगह देखें, ये आप इनकी प्लेस देखें, इनके पास राइफल्स देखें, ये यकीनी तौर पर हिरासत में है। अच्छा, जी, ये यकीनी तौर पर अफराद जो है हिरासत में, जिस जगह पर ये बैठे हुए हैं, जिन चेयर्स पे जहाँ पे बयान दे रहे हैं, ये यकीनी तौर पर हिरासत में है, क्योंकि इन्होंने अपने वेपन्स और असला जो बोदे ने इनको दिया हुआ था अपनी गनमैनी के लिए, ये वो लेकर पेश हुए हैं। ये नजर आ रहा है दफ्तर के हिरासत में। और एक वीडियो इनकी ऐसी है, उसी दफ्तर में, उसी थानेदार के कमरे में ये बेड पे बैठ के मलक बोदे को बड़ी गलीज गालियां निकाल रहे हैं। वो वीडियो हम चला नहीं सकते यहाँ पे, वो मैं आपको मैं देता हूँ, आप वो भी देख लें जरा वीडियो, कि उसमें वो ये क्या रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो नाज़रीन सिलसिला है ना, जो फुरकान भाई ने बात पूछी है, ये अब बोदे के खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं। अब देखते हैं कि सीसीडी के इदारे और जो हमारे सियासतदान हैं वो इस सारे मामले पे क्या एक्शन लेते हैं, क्या अमल करते हैं, क्या मलक बोदे को एनकाउंटर में पार करने की तैयारियां चल रही हैं, या ये बहुत बड़ी बात। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं कि क्या उसको एनकाउंटर में पार करने की तैयारियां चल रही हैं, कि जो ये वीडियो लीक हुई है, या जो उसके, आपको पता है कि वो मलक हबीब अमान साहब जो है वो एमपीए भी हैं, उनके भाई भी हैं और नून लीग में बड़ा असर और रसूख रखते हैं, या सियासतदान जो हैं इस सारे मामले पे, क्योंकि बेसिकली मलक बोदा दुश्मनदार है फुरकान भाई, वो कोई किराए का कातिल नहीं है, उजरती का ऐसी कोई नेगेटिव उनकी एक्टिविटी कभी नहीं सुनी, पैसे लेकर किसी का बंदा मरवा दिया हो, इस किस्म का उसने, इसका अभी तक कोई काम सामने नहीं आया। जो भी उनकी कत्लो गारत गरी हुई है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की दुश्मनी उनकी चल रही है, आज की दुश्मनी नहीं है इन लोगों की, ये बड़ी पुरानी दुश्मनी चल रही है। तो ये बेसिकली दुश्मनदार बंदा है। लेकिन ये जो सामने लोग आए हैं जिन्होंने आकर बयान दिया उसके खिलाफ, अब देखते हैं कि सीसीडी जो है वो इस बयानात के ऊपर क्या एक्शन लेती है और हुकूमत और रियासत इस पर क्या करती है। ये फुरकान भाई सारी बात है।
ये लेकिन अगर रियासत ने किसी को जेल से निकाल के मारना हो तो रियासत को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्या अगर वो शख्स ताकतवर हो तो फिर थोड़ी सी रियासत उसकी ग्राउंड बनाती है इस तरह की वीडियोस खुद लीक करके? देखें जी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस किस्म की जिस तरीके से खड़े हुए हैं, जिस जगह पे खड़े हुए हैं, यकीनी तौर पर ये कोई पुलिस का ऑफिस है जहाँ पर पूरी प्रॉपर चेयर्स पड़ी हुई है, किसी थानेदार का कमरा है कि जहाँ पर एक बेड भी उसके सोने के लिए लगा हुआ है। क्योंकि आपने और मैंने अमूमन थानों के जो सार चीज विजिट की हुई ये है। नजर आता है कि यार ये जो है ना वो बैठे हुए हैं, ये सारी चेयर्स लगी हुई हैं लोगों के बैठने के लिए, और ये प्रॉपर एक ऑफिस है किसी थानेदार का कि जहाँ पर ये वीडियो डेवलप हुई है और असले के साथ बनवाई गई है बाकायदा तौर पर। ये वो वीडियो है। अब देखते हैं कि इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन होगी या आपकी क्या राय है? मैं थोड़ा सा आप मादरत के साथ आपको ज्यादा तंग कर रहा हूं कि इस तरह के लोगों को वादा माफ गवाह बनने देना चाहिए। ये ट्रेंड सेट होना चाहिए कि पहले एक बंदा क्राइम करे किसी के साथ मिलके, उसके बाद वो वादा माफ गवाह बने, और फिर उसको जिसको एक दफा क्राइम की आदत पड़ गई है ना, तो वो बाज नहीं आ सकता। देखें फुरकान भाई, जब इंसान की जान पे बनी होती है ना तो वो अपने बहन भाइयों को भी खा जाता है। ऐसा ही है अपनी जिंदगी। दुनिया का ये असूल है। हाबील ने काबिल को क्यों कत्ल कर दिया? आज से कत्ल होने शुरू हुए हैं। सगे भाई ने सगे भाई को मारा था, इस्लाम के बेटे थे दोनों, लेकिन वहां से कत्ल गारतगरी का आगाज हुआ है कि जब अपने तहफुजात, अपना मफाद इंसान का सामने आता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि मेरा भाई है, मेरा गनमैन है, मेरा बॉस है या मेरा चाचा है, वो नहीं देखता, वो उसकी कुर्बानी दे देता है। कई ऐसे माजी में वाकयात हुए हैं, कई दुश्मनदारों ने अपने ही मरवा के दूसरों पे डाल दिए हैं। हाँ, ये तो ये लाहौर की रूटीन है कि अपना मरवा के दूसरे पे डाल दो। तो ये इस किस्म के वाकयात में अब ये इनकी आप शक्लें देखें कि जो ये बयान दे रहे हैं बंदे, कि इनमें ये तीनों आइस के नशे लग रहे हैं। प्रॉपर ये नशा करने वाले बंदे हैं, इनके नशे से थोड़े हुए लग रहे हैं कि यार कोई इनको पुड़ी दे दे और ये जो मर्जी करवा लें आप इनसे। ये इस किस्म के लोग, इस तरह के बंदे तो मेरे हिसाब से बड़े डेंजरस हैं, बहुत डेंजरस है। ये तो बाहर अगर आ गए या अगर नहीं पकड़े गए, ये तो हमारी क्या सराही है ना कि पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए, क्योंकि मुसद्दका इतला तो हमारे पास कोई नहीं है। फुरकान भाई, मेरी ये मुसद्दका इतला है, ये पुलिस की तहवील में है। ये मैं आपको ओके, ये मेरी मुसद्दका इतला, वो खुद कह रहे हैं वीडियो बयान में कि हमने अपने गन्स और ये सारी चीजों समेत पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। पीछे कह रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि पुलिस कस्टडी के अंदर जो है उनके राइफल के साथ ये बयान चले हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने खुद इस तरह की वीडियो लीक करवा दी हो, लेकिन पुलिस कस्टडी में इस तरह की वीडियो का खुफिया बन जाना भी एक सवालिया निशान है। देखिए जी, इस वक्त सीसीडी जो है, सीसीडी में कौन अफसरान है? वही अफसरान है जो ओसीयू में रहे हैं, वही अफसरान है जो सीआईए में रहे हैं। फुरकान साहब, कोई नए तो नहीं भर्ती हुए वे सारे? हाँ, सारे पुराने हैं। इनमें में से कौन सा हमारे लाहौर में जो है वो सीसीडी के अंदर ऐसा इंचार्ज या ऐसा एसपी लगा हुआ है कि जो मलक बोधे को नहीं जानता? सब जानते हैं उसको। उसके साथ इनके कई लोगों के उसके साथ ताल्लुकात भी हैं और कई लोग उसके खिलाफ भी हैं। अब ये देखें किसने क्या किया है, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सुहेल जफर चड्ढा साहब तो देखेंगे कि भाई एक मामला चला के आया, ये बात क्या हो रही है। पहले तो ये सब पुलिस डिपार्टमेंट जब सीआईए था तो इसमें धड़ाबंदियां होती थी। एक दुश्मनदार ग्रुप के साथ कुछ लोग जुड़ जाते थे, एक दुश्मनदार के साथ कुछ लोग जुड़ जाते थे, और वो दुश्मनी को परवान चढ़ती रहती थी। उधर वाले कहते थे चढ़ जा सूली पे राम बली करेगा, उधर वाले कहते थे तू चढ़ जा। भाई माजरत के साथ मैं देखें, हमारा इदारा है सीसीडी और इस वक्त बड़ा अच्छा काम कर रहा है, कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखें एनकाउंटर्स जो है ना फुरकान भाई, वो एक अलग चीज है कि आपने बंदा पकड़ के मार दिया, डाकू था, इतने पर्चे थे या शूटर था, व्हाटएवर जो भी था, लेकिन जो काम सीसीडी गैंग रेप वालों के साथ कर रही है, इसके में हक में हो, इसके हक में। और एक और काम भी है, एक और काम भी है फुरकान साहब के, जो हाफराई की है कसूर में और मुल्तान नामर्द कर दिया, जो नामर्दी वाले जो वो उस पे मैं बड़ा खुश हूं। आप यकीन जाने कि ये पंजाब का हमारे बहुत बड़ा मसला था। इसमें मुलजिम जाता था, उसके मुद्दईयान को जो है हरासा कर दिया जाता था, थोड़े से पैसे दे दिए जाते थे, इलाके के बाहर सब लोग पड़ जाते थे और बंदा छूट के बाहर आ जाता था और फिर वही हरकतें करता था। मैंने तो यहाँ तक रिक्वेस्ट की थी कि फायर मारने के बजाय ना उसका जो अजू है ना उसको काट के कुत्ते बिल्ली को खिला दे ताकि वो रिपेयरेबल ही ना रहे। फुरकान भाई, कानून नाम की भी तो चीज है, सीसीडी ने कानून की भी तो बालादस्ती रखनी है ना, कि वो बिल्कुल ही ऐसे, लेकिन अपनी सोच है। मैं अभी इस तरह की बात, क्योंकि वो काम बड़ा अच्छा कर रही है, खून की दीवार से खून को रोकना मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि पुलिस मुकाबले बड़ी देर से चल रहे हैं और अभी तक उनसे तो असर नहीं पड़ा। अब आके थोड़ा सा खौफ। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सीसीडी में अगर कोई मामला अगर कभी जिंदगी में आगे चल के इनके खराब हुए भी ना, तो वो सिर्फ एक वजह से होंगे कि एक दुश्मनदार की खातिर दूसरे दुश्मनदार को अगर इन्होंने मार दिया ना, वो तबाही, वो रिवेंज सीसीडी का खत्म हो जाएगा। अगर मेरिट पे मारा है ओके फाइन, अगर किसी ने अपना खारबाजी में मार दिया या ताल्लुक में मरवा दिया है, तो यहाँ पर सीसीडी के मामला जो है वो खराब होंगे। अदरवाइज सीसीडी इस वक्त बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। हाँ, इस वक्त अब ये जो है ना रेपिस्ट जो उनके साथ हो रहा है ना, उस पर मैं बहुत खुश हूँ। जो लास्ट वाला इन्होंने किया ना, एक ये कसूर और मुल्तान वाला, और ये लास्ट जो कारी साहब की बेगम वाला, कारी साहब से पहले हाफजाबाद वाले भी, हाफजाबाद वाले, लेकिन उसमें एक अभी रह रहा है, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सवालिया निशान है। तक सियासी जो हमारी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो बड़ा सियासी मुदाखलत है डिपार्टमेंट्स के अंदर खत्म नहीं होगी ना, तो फिर इस तरीके से ये एक एक मुलजिम जो बचता चला जा रहा है ना, ये आगे भी जाके नुकसान करेगा।
ऐसा ही ये है, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता कोई दो राय नहीं कि अगर पकड़ना है तो सबको पकड़ के फड़काओ। अब इधर भी एक रह गया है, सारे इधर भी एक रह गया, उसका नाम इमरान है, और सुनने में आ रहा है वो इन सबका लीडर था। ऐसा ही है जिसका वो मेयर इमरान जिसका डेरा जिसने शराब पिलाई थी, शराब पिलाई, वो इन सबका लीडर है। अब वो मुझे जो मेरे जराए बता रहे हैं कि उसके पीछे भी बड़ा जोर लग रहा है कि यार सीधे लफ्जों में कंगले मार दिए तो तगड़ा बच जाएगा, तगड़ा जो है वो, लेकिन मुझे नहीं बचना लगता, फिर तगड़ा भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि बचेगा, क्योंकि केस जो है ना वो किसी और तरफ चला गया हुआ है। आप देखें कि ये पकड़े गए हैं ना, जब मुझे मेरे सीसीडी के जराए ने बताया है कि उस वक्त तो जिन्होंने शराब वगैरह पी हुई थी, उन्होंने अपना काम किया है, कुल्हाड़ी शुलाड़ी दिखा के जो भी इन्होंने किया है, कि वहां से फरार हो गए फुरकान भाई। उसके बाद सीसीडी ने इनको गिरफ्तार किया है, ढूंढा है, ये बड़ा बात है। और नामालूम लोग थे और बड़ी मुश्किल उन्होंने इनको ट्रेस किया है। जब उन्होंने ट्रेस किया है तो सीसीडी ने इनसे एक ही बात पूछी है कि हाँ भाई ये काम किया है कि नहीं किया। उन्होंने कहा जी किया है, बस। तो जब किया तो बात खत्म हो गई। किया तो कुछ चलो, अगर ये बेगुनाह होते या कारी साहब या उनकी बेगम ने पे झूठा कोई इल्जाम लगाया होता तो सीसीडी ने मारना था इन्हें, उन्हें तस्दीक हो जानी थी, वेरिफिकेशन हो जानी थी, झूठ बोल रहे हैं। तो कारी साहब इस वक्त जेन्युइन हुआ, ये काम उनके साथ जेन्युइन हुआ। देखिए जी, वो मुझे पता लगा है फुरकान साहब नई नवेली दुल्हन थी और वो मियां बीवी में कुछ चपकुले चल रही थी, वो सुलह करने के लिए। सर नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, नई नवेली दुल्हन थी, मस्जिद जहाँ पे जब कारी साहब को मोहम्मद का जहाँ पे मौका मिला हुआ था ना, वहां पर उनको रिहाइश भी दी गई थी। अब वो नई नवेली दुल्हन लेके आए, खाना वाना उन्होंने खाया, बड़े अच्छे मूड में टहलने के लिए निकले हैं खेतों में कि यार थोड़ी वॉक कर ले, मौसम प्यारा है। और बाहर जो है खेतों का, आपको पता है हमारे माहौल होता है गाँव में, वहां पर ये कमबख्त 4 लोग, ये जाहिद, ये इमरान और इनके साथ जो है वो अवैस और इरशाद, ये कमबख्त शराब पी के निकले। इनकी नजर पड़ गई कारी साहब की बीवी पे कि ये चूंकि जाहिर है इस माहौल में ये खेतों में जात जुड़ के बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कोई जोड़ा बैठा हुआ है, वो इनके ऊपर चढ़ पड़े। और वैसे भी शर पिलाने वाला पानी जब ये अंदर चला जाएगा तो बर्बादी का बाइस बनेगा। फुरकान साहब इनके पहले भी बड़े वाकयात हैं इलाके के अंदर, ये सीसीडी नहीं, ये तो ठीक है, इसमें तो दो राय नहीं है। मैं वो सर पहला ना भी हो जिसने पहला भी किया ना, इस वाकये में माफी मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि इनके पहले भी बड़े वाकयात हैं और इलाके के लोगों ने बताया कि ये शराब पी के जिस मर्जी औरत पे हाथ डाल लेते थे। चलो फिर अब चले गए हैं ना, किसी की बदवा तो लगी है, बेहतरीन ये इनका सिलसिला हुआ है। और आगे भी मैं तो फुरकान भाई बार बार कहता हूँ अपने फॉलोअर्स से, जो मेरे देखने वाले हैं उनसे, कि यार खुदा दा वास्ता जे वो किसी बुढ़ी ना छेड़ देना, नहीं तो सीसीडी पै जाएगी तुम, तो फिर वही होएगा जो कसूर में हुआ है और जो मुल्तान में हुआ है कि सौदा नहीं साथ रहना। खुदा का खौफ कर लो, बच जाओ इन चीजों से। अपनी बुढ़ी भी सड़क पे छेड़न तो डर लगेगा लोगों को, यार ऐसी कोई हरकत ना हो जाए। बात यही है। आप देखिए ना, पहला जब वाकया हुआ है ना फुरकान भाई, जो कसूर वाला हुआ है, उसमें जो सीसीडी की तरफ से जो बयान आया है ना कि हम इसको पकड़ने गए हैं, इसके नेफल में पिस्टल अड़ेसा हुआ था, मैंने उसमें अपने प्रोग्राम में कहा घोड़ा दबाकर घोड़ा उड़ा दिया। वो चल गया। अच्छा, एक वाकया हो गया, मैं मेरे जैसा जर्नलिस्ट भी उसने कहा चलो एक ही वाकया हुआ ना, हो सकता है कि ये वाकई जेन्युइन सीन हो गया हो, लेकिन जब मुल्तान में हुआ है ना फुरकान भाई, मैं समझ गया, मैं कहा सौदे उड़ने शुरू हो गए। तो ये तालियां बजाने को दिल नहीं करता? तालियां बजाने को बिल्कुल दिल करता है कि हमारा ये पंजाब का सबसे बड़ा मसला ये था, रेपिस्ट छूट जाते थे, रेपिस्ट अदालतों से लड़कियां अब छूट से बयान दे देती थी। अब ये छूट भी जाए, हाँ जी, घोड़ा दबा के जिनका घोड़ा उड़ गया है, तो ये बाहर जाके खुसरों के साथ डांस ही करेंगे। नाजरीन, आज मैंने अपने भाई को एक प्रोग्राम अभी मैंने और करना है, वो इनके बारे में है, इनके ऊपर कातराना हमला भी हुआ है, वो मैं अगले में करता हूं। इसके साथ ही फिलहाल अपने दोनों भाइयों को इजाजत दें और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ाने वाला काम ठीक है कि गलत है, और ये रेपिस्ट लोगों के साथ गलत हुआ है कि ठीक हुआ है। सीसीडी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, इसके बारे में अगर आप लोग ये नीचे लिखते हैं ना कि झूठा पुलिस मुकाबला है, तो किसमें जरूरत है सीट पे आके बैठे और साबित करें और ये कहें कि इतने पैसे लेके मरवाया। इस तरह का कुछ सबूत लेके तो आए ना, सिर्फ कमेंट नेगेटिव लिख के एंटी पुलिस होके अपने आप को नंबर बनाने की कोशिश ना करें। जो पुलिस अच्छा काम कर रही है उसकी तारीफ करें, जो गलत करेगा तनकीद हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।